सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में और आप देख रहे हैं उड़ान प्रेजेंटेड बाय यूटीआई म्यूचुअल फंड इन पार्टनरशिप विद सीएनबीसी आवास। जैसा कि कहा गया है द फ्यूचर बिलोंग्स टू द क्यूरियस, तो अपनी इस जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने देना, क्योंकि मैनेजमेंट की दुनिया में वही टिकेगा जो सवाल पूछना बंद नहीं करेगा। तो इसीलिए स्टे क्यूरियस, स्टे अहेड। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जनरल काउंसिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और फाउंडिंग मेंबर मिस्टर सीवी रघु से, जो हमारे साथ साझा करेंगे कि आज की बदलती दुनिया में लीडरशिप के असल मायने क्या हैं। तो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर सीवी रघु। आपकी जर्नी कैसी है? मतलब आप एक अच्छे लीडर थे, आप बॉसी थे, क्योंकि यूजुअली जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो दो तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो बैक बेंचर्स होते हैं या टॉपर्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप की बात करें तो आपके हिसाब से लीडरशिप एक्चुअल में है क्या, या फिर आपने क्या सीखा अपनी जर्नी में? My belief is that leadership is all about value system. It's all about value system, which is fast depleting in this country. There's a deficit, huge amount of deficit, and I guess the generation next has to uphold the value system. And value system is nothing, these words sound like cliches. Value system is simple: be truthful, be honest, have integrity, have the courage to say the right thing. Courage doesn't mean aggression. Be assertive. Right. So that's the way we have started our life. We came from small towns, so obviously our value system was much stronger as compared to kids who grow up in the cities, because you are exposed to many more things. हमारे यहाँ पर आप बाबूजी को ना नहीं बोल सकते हैं, माताजी को ना नहीं बोल सकते हैं, कोई घर में बुजुर्ग आए पैर छुए वगैरह आप चल नहीं सकते हो. So it was all value system, and that time is to rebel, but today we feel that's what is keeping us in good stead. स्टूडेंट लाइफ बहुत सारे फेज से गुजरती है, एंजाइटी भी होती है, काफ़ी बार स्ट्रेस भी होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेडलाइंस का भी पीयर प्रेशर होता है, मेरे कुलीग को ने अच्छा परफॉर्म किया या उसको इंटर्नशिप मिल गई, हमें नहीं मिली। इन सब चीज़ों से कैसे डील करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास हमेशा दिक्कतें आएंगी. इनफैक्ट आज के स्टूडेंट लाइफ में जो दिक्कतें आप जो चीज़ मेंटल हेल्थ बोल रहे हैं, these are to my mind, why? What are you competing against? Imagine what if, एक what if question होती है लाइफ में. What if I failed? Nothing will happen. Nothing will happen. I'm telling you. The question, and please ये ग्रांट मान लीजिए, if you overcome that fear of what if, then everything in life is hunky-dory. Life is too precious. Get out of this mental health. There's no concept of mental health. You are all privileged children to study in a campus like this. You are privileged to have professors like this. You are privileged to have these kind of sessions. We never had. The question is that, in spite of that, what is it? If you earn 2 lakh rupees less or 5 lakh rupees less than your peer, life is not coming to an end. It will not. It should actually push you harder to say that I'll work harder and I will cross that barrier. एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट करने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है? मैम, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया. जो आदमी आपको क्रिटिसिज्म करता है ना, ही इज़ योर फ्रेंड. पहला चीज़ वो चीज़ मान लीजिए. क्रिटिसिज्म देने के लिए ना बहुत करेज चाहिए. इफ़ आई हैव टू कम अक्रॉस टू योर वर्क स्टेशन एंड से well, ma'am, I did not like this. It takes a lot of courage to say that. And the fact that somebody is telling you is a boon in disguise. Take criticism very positively. There will be emotional side of that. When people give criticism, they do a lot of emotive. Remove the emotion, but see what is it that they said. And if you start working on that, and if you listen to them, the guy who's criticizing you most, take it from me, 12 months later, he will be your biggest follower because you have acted on his criticism. Criticism comes positive, negative. Positive, ज़्यादा don't pat yourself too much. Positive, लोगों को क्या होता है, जो अच्छा बोलता है तो he's your, जो आपकी गलतियाँ बताता है, वो भी he is actually a better friend than the person who told you the good thing. because जो अच्छा चीज़ बोल रहा है वो आपका साइकोफैंट है, वो आपको चढ़ा रहा है. Please be careful. Don't fall into that trap. वेल थैंक यू सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा आपके साथ. थैंक यू सो मच.
जब बात निवेश की हो तो आप तब शुरू नहीं करते जब आपको ज़रूरत होती है, बल्कि तब शुरू करते हैं जबकि ज़रूरत के वक्त आप तैयार रहें। तो ये सेशन इसी के बारे में है कि कैसे परफेक्ट होने का इंतज़ार किए बिना पहला कदम उठाना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और यही समझाने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ वेलकम यूटीआई म्यूचुअल फंड के रीजनल हेड मिस्टर विवेक कुमार सिंह। एजुकेशन ये एक टॉपिक ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा एक चीज़ें बोलते हैं कि भाई हमारे को बहुत अच्छा एजुकेशन करना है और सब चाहते हैं कि हम एक अच्छे स्कूल कॉलेज में जाएं, और हम लोग जो है अपने कॉलेज स्कूल्स में पढ़ने के बाद इसको हमारा जो पैशन है उसको हम फॉलो करें। और पैशन हो सकता है कि मेरी सिंगिंग हो सकती है, मेरी डांसिंग हो सकती है, या मैं एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता हूँ। प्रोफेशन में मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, जैसे मैम यहाँ पर है, मैं लीगल एडवाइज़र बन सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस ज्वाइन कर सकता हूँ, और मेरे जैसे जो है हम लोग कोई है जॉब कर सकते हैं। मगर ये चारों चीज़ों का एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्या है? फाइनेंशियल रिजर्व ऑयल। सो फायर मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आप बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकते। और जब फाइनेंस की बात आती है तो ये डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में: बिगिन अर्ली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड इन्फ्लेशन। और यहाँ पर हम लोगों ने शो करा है, सिंपल फार्मूला है, ये कंपाउंडिंग का फार्मूला है। और यहाँ पर हम क्यों शो कर रहे हैं? सी, लाइफ में जो है ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इन माई कंट्रोल और दूसरा होता है नॉट इन माई कंट्रोल। यूजुअली हम लोग फोकस क्या करते हैं ना, विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। इस फॉर्मूले में आप बता सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? रेट ऑफ रिटर्न, राइट। रेट ऑफ रिटर्न हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? टाइम। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब इन्वेस्टर आता है तो हम लोग से ये पूछता है, बोलता है कि सर ये वॉर कब रुकेगी, जिसका आंसर मेरे पास नहीं है। या बोलता है कि सर मार्केट का जो है, मार्केट अपसाइड कितना जाएगी या बॉटम कितना जाएगी, या मार्केट जो है अभी जो है गोइंग फॉरवर्ड कैसा बिहेव करेगा। वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ टाइम है। जितना ज़्यादा मैं समय अपने इन्वेस्टमेंट्स को दूंगा वो उतना बेटर ग्रो करेगा। द लास्ट, इन्फ्लेशन इज़ ईटिंग आवर सेविंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी आप लोग कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं या कुछ स्पेंड कर रहे हैं तो उसका अगर कुछ पोर्शन जो है आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी रखेंगे, गोइंग फॉरवर्ड ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुशन रहेगा। 3 टेक अवे: स्टार्ट अर्ली, know the power of compounding, last is most important, manage your lifestyle inflation. So with this, thank you very much, and I wish you all a very happy, wealthy, healthy journey of your financials. Thank you. आई एम श्योर कि आप सभी के मन में बहुत सारे अब सवाल होंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो सर ने बता दी, लेकिन आपके मन में होगा कि हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं, हम तो खुद ही डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो कैसे इन्वेस्ट करें। और सवाल शुरू करते हैं। What do you think you see the biggest single mistake that young MBA professionals make in the first year of their journey when they're earning? So in the first 5 years of their earning, what according to you would be the single biggest mistake? Whenever I'm making any investment, so there is some goal, ठीक है। और अगर मैं वो गोल पे अगर पहुंचना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। वो कंटिन्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस कंटिन्यूटी को मिस नहीं करना है। तो जब कभी भी मार्केट डाउन होता है तो आपके संग जो इन्वेस्टर को जो सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या होती है कि वहाँ पर मेरी NAV जो होती है, नेट एसेट वैल्यू, वो नीचे हो जाती है, तो मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो स्टॉप करने का है, वो बिल्कुल नहीं करना है, उसको कंटिन्यू रहने दीजिए, बल्कि हो सके तो उसमें और टॉपअप करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, सिप टॉपअप। नो, दिस इज़ द न्यू फैसिलिटी। 21 ईयर्स बैक वो फैसिलिटी थी नहीं जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट्स। सो ये एक मैंने यूजुअली मिस्टेक देखा है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि अभी जो जेनजी का ज़माना है, तो हमारे में ट्रेंड है कि इट्स अ टर्म कॉल्ड योलो, यू लिव ओनली वंस। सो इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट उस पर कंसिस्टेंट कैसे रहे? इम्पॉर्टेंट इज़ योर गोल सेटिंग। आप अपने गोल्स बनाइए
और उस गोल्स के अगेंस्ट आपको कितने पैसे की ज़रूरत है एक वो सेट करिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और जब कभी भी आप डेविएट हो रहे होंगे ना, एंड जो मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था ना, देखो लाइफ में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कभी भी आपके मन में ये लगे कि यार मुझे इसमें जो है डीमोटिवेट हो रहे हैं ना, तो अपने गोल्स को देखिए एंड कंटिन्यू योर जर्नी। बेसिकली एट द बिगनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जैसे हम फ्रेशली ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हम वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न पे देखते हैं। सो परसेंटेज ऑफ रिटर्न इन म्यूचुअल फंड इज लाइक कम दिखता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। वेयर डू आई नीड टू इन्वेस्ट, लाइक हाउ मच मनी लाइक आई नीड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और हाउ मच मनी आई नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रिटर्न इज़ अ बाय प्रोडक्ट, व्हाट इंपॉर्टेंट इज़ द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अगर मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स में कौन सी कंपनी जो टॉप में रहेगी। उसके लिए कुछ आपको जो है फंडामेंटल और टेक्निकल देखना पड़ेगा कंपनीज़ का। बट इजी वे ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, बिकॉज वो फंड मैनेजर आपका काम वहाँ पर आसान कर रहा है, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंड वो ऑटोमेटिकली कॉल लेगा और वो कंपनी को एंट्री एग्जिट करेगा। तो मेरा आप लोगों का एडवाइस ये रहेगा कि बिगनर्स के लिए म्यूचुअल फंड इज़ द राइट वे टू एंटर इनटू द मार्केट। कुछ टाइम स्पेंड करिए, 5 साल 10 साल 15 साल, फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है देन गो फॉर द डायरेक्ट स्टॉक्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए और सारे स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। जब सब कुछ इतनी तेज़ी से भाग रहा हो तो अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारे साथ कुछ बेहद ख़ास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनसे हम सीखेंगे कि इस प्रेशर के बीच में कूल और काम कैसे रह सकते हैं। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर महिमा बख्शी, वुमेन एंड चाइल्ड वेलनेस कोच, अनुजा त्रेहान कपूर, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एंड एडवोकेट, और साथ ही डॉक्टर पुलकित खन्ना, प्रोफेसर एंड डीन GIBS से। आप सभी का स्वागत है, प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज। कॉस्ट ऑफ ऑलवेज बीइंग ऑन, डॉक्टर महिमा मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, आप कैसे एनालाइज करती हैं इसे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम में हम अपने आप को मेंटली स्विच ऑफ करना सीखें, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें लाइफ में हो रही होती हैं, इतने सारे गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, इतने एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न हाउ टू स्विच आवरसेल्व्स ऑफ राइट फ्रॉम द स्कूल टाइम। ये शुरुआत जो है ये स्कूल टाइम से होनी बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से वो बैलेंस अपना खुद का पर्सनल गोल्स एंड इंश्योर करना कि आप सोसाइटी के प्रेशर के साथ में अपना एक बैलेंस कैसे बना पाते हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा रोल आता है पेरेंट्स का और पेरेंटिंग का। तो मेरा मानना ये है कि स्कूल टाइम से बच्चों को बैलेंस सिखाना वो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, ना कि हम कॉलेज में आके या फिर हम वर्क लाइफ में आके बोले कि यू शुड नो हाउ टू बैलेंस आउट योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। आई थिंक दैट स्विच ऑफ हैज़ टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्कूल टाइम। डॉक्टर खन्ना, बिहेवियरल साइंसेज या बिहेवियरल मैटर्स की जब हम बात करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आपकी रही? आप काफ़ी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती होंगी। हर पल विद द ब्लिंक ऑफ एन आई इतनी ज़्यादा चीज़ें घट रही हैं कि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है। बट सच ये है कि इसके बहुत सारे कॉस्ट्स भी हैं, जो आपका सेशन का थीम कहता है, द कॉस्ट ऑफ ऑलवेज बीइंग ऑन। हर समय कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के प्रोसेस में हमारा इससे बहुत सारा फिज़िकल, इमोशनल, कॉग्निटिव लॉस भी है, जिसकी भरपाई शायद हम उस मोमेंट में नहीं रियलाइज़ करते, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारे ऊपर टोल लेता है। और इसका कोई ना तो एक सिंपल कारण है कि ये क्यों हो रहा है, ना ही कोई एक सिंपल सल्यूशन है, बट बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पे अगर हम सही तरीके से ध्यान दें, जैसे कि महिमा जी ने भी कहा, फ्रॉम अर्ली ईयर्स, फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स, तो हम डेफिनेटली इसको रेगुलेट, नियंत्रित कर सकते हैं। अनुजा जी, सोशल प्लेटफॉर्म से हम सब दूर नहीं हैं, मतलब आप लिंक्डइन देखें, इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक देखें, दूसरों की लाइफ देखें तो लगता है वाह कितनी परफेक्ट लाइफ है, घूम रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, इतने सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। और उससे होता यह है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर हर इंडिविजुअल फेस करता है कि शायद हम ख़राब परफॉर्म तो नहीं कर रहे या हम पीछे तो नहीं रह गए। तो ये जो परफेक्ट लाइफ ट्रैप है, इसे आप ट्रैप कहेंगी भी कि नहीं एक्चुअल में, जो हम देखते हैं या फिर जिसे हम देख के इम्पैक्ट होते हैं स्पेशली सोशल प्लेटफॉर्म से? सोशल मीडिया अटेंशन आपको कहीं इस तरीके से अपना चैसल बना देता है कि आपको ये लगता है कि कहीं मैं एक ऐसे दुनिया में ना पहुंच जाऊं कि जब लोग मुझसे बात करें तो कहें अरे यार तुम आज की दुनिया में नहीं रहते, तुम्हें पता नहीं क्या चल रहा है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम है। एंड इट विल फील कि शायद वाकई में मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ, मुझे शायद पता ही नहीं है।
आप इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस डेफिसिट में आप रह जाते हैं, परफॉर्मेंस का प्रेशर आप में इतना ज़्यादा हाई लेवल पर रहता है कि आपको लगता है कि क्या मैं आज अपने लिए लाइक बटन इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लोग रील्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि घर पे तो वो मिल नहीं रहा है प्यार, घर में तो वो अटैचमेंट भी नहीं मिल रही है, घर में तो वो चीज़ जिसको आप लाइक बटन कहते हैं वो लाइक बटन तो आपको मिल ही नहीं रहा है, आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तो कोई मौजूदगी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी तो ख़त्म हो चुकी है। वो आइडेंटिटी आप कहाँ ढूंढ रहे हो? वो आप आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया में। इसी को कहीं ना कहीं एड्स ने भी बहुत बेनिफिट उठाया है। आप जब इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, एड्स आते रहते फटाक से। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं सर, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं सर को क्या बोलूँ, मैं खुद कर रही हूँ। मैं रात में भी 2 में खरीद के आई हूँ लिपस्टिक रास्ते में। क्या बोलूँ सर, प्रेशर है मेरे ऊपर। सो दिस इज़ इट इज़, यस, एंड बिलीव मी द गर्ल्स आर सिटिंग हियर। नहीं, किट्टी में जाएंगे तो कोई पूछे, है बाली बड़ी सुंदर लग रही, कहाँ से लाया? हाँ अच्छा, ऐसे मत बताएंगे नहीं कहाँ से आई, लेकिन लाई इंस्टाग्राम से, तुमने भी देखी है, बताएंगी नहीं। सो दिस इज़ द प्रेशर विच वी आर लिविंग विथ। डिप्राइव्ड हम लोग ज़्यादातर रहते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। कितना स्लीप इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट हर इंडिविजुअल के लिए, और क्या वो एक नैनो स्टेप आपकी तरफ से रहेगा जो आप इन स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। स्लीप इज़ लाइक द चार्जिंग ऑफ द बॉडी। इट जस्ट पुट्स योर बॉडी एंड माइंड एट रेस्ट एंड इट हेल्प्स इन इंटरनल हीलिंग ऑफ द सिस्टम, हीलिंग ऑफ द माइंड, हीलिंग ऑफ द बॉडी। तो बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम 6 to 8 आवर्स की स्लीप कॉलेज स्टूडेंट्स को या इंडिविजुअल्स को मिले। एक बहुत ही बेसिक रूल मैं सबके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगी रिगार्डिंग स्लीप हाइजीन। The rule of 3 to 1. So 3 hours before you sleep, you should not eat anything. 2 hours before you sleep, you should not work or study. And 1 hour before you sleep, you have to keep the phone aside. अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ, आई वुड से रेस्ट इज़ नॉट द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक ब्रेक लेना, टाइम ऑफ लेना कोई प्रोडक्टिविटी का एनिमी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट है। शुक्रिया आप तीनों का है, इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल सेशन था ये। थैंक यू सो मच। Thank you. कॉलेज से निकलने का मतलब सिर्फ एक जॉब पाना ही नहीं है, बल्कि आज आप सीधे लीडरशिप रोल्स में, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलकर कदम रखेंगे और यही काम भी आता है। हायर एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सिर्फ डिग्री नहीं है बल्कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और ग्लोबल विजन को भी शेप अप करने का जरिया है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसी संस्था इसी बदलाव की मिसाल भी हैं, और सवाल ये है हालांकि कि इंडिया में एजुकेशन को कैसे री इमेजिन किया जाए ताकि हम दुनिया को लीड कर सकें। और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अब बातचीत करेंगे, और मैं बुलाना चाहूँगी मेरे सहयोगी रोहन सिंह को, और उनके साथ मंच पर आ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर पद्मनाभ रामानुजम, जो कि डीन है एकेडमिक गवर्नेंस स्टूडेंट लाइफ। सर स्वागत है आपका स्टेज पर। प्रोफेसर पद्मनाभन, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे पास, हमारे साथ आने के लिए। जब हम बात करते हैं री इमेजिनिंग हायर एजुकेशन, तो एक चीज़ जो हम जानना चाहेंगे कि री इमेजिनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये जिस तरह अगर भारत की बात करें, यहाँ पे एक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ऐसे में जब हम री इमेजिन करेंगे तो क्या सही तरीका हो? My idea of reimagining education and why it is challenged is, do you think in next 5 years, 10 years, 15 years, something like a degree or a master's degree will even exist? I think that's the quintessential question, and that is why we are all thinking about how we need to reimagine higher education space, because I think the idea of learning itself is changing, and largely because of artificial intelligence. And I think it is not only asking these questions, but I think universities need to start adapting, start thinking, start ideating. And I think how we want to educate the future, how we want to make them employer ready, I think it is going to be very interesting next 10-15 years for all universities in India. जब आप अपने करिकुलम में, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर AI को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना अब तो काम चलेगा नहीं, तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी स्किल है जो इन स्टूडेंट्स के पास रहनी चाहिए, जो कि आगे उनको फ्यूचर जॉब मार्केट में रेलिवेंट बनाए रखेगा? Indian education system and largely Western based education system has always been linear. After class 12 I'll do undergraduate degree. After undergraduate degree I have to do master's degree.
I think students of this generation needs to understand it's the same. Whether you study in India, you go to UK, you go to Australia, you go to US, learning is now going to become lifelong. You like it, you don't like it. And it is going to become modular. What is modular? I want to do in 3 hours. I want to understand how do I use AI for legal profession. If that module is available, I should be able to go learn that module. And if that module is important. So modular is breaking down your degrees into shorter certifications and micro credentials, which will make you more relevant and learning lifelong. So this is how institutions also needs to adjust. Almost all the universities will become the Courseras of the world, where you're going to go and explore stackability. I don't want to study political science. Maybe I want to study applications of political science to this. I may not want to study history. Maybe I want to study history to the extent that I can go and give somebody a tour. So it is going to become very modular, and it is going to become more micro-credential. That is what is going to make students' learning journey lifelong. And I think that is what is going to make them more skill development and more relevant in market, rather than which is very linear and which has been told to them after K-12 degree after degree masters is going to get replaced very soon. प्रोफेसर पद्मनाभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस शानदार चर्चा के लिए। और इसी के साथ उड़ान ओपी जिंदल एडिशन का समापन होता है, जिसे प्रेजेंट किया यूटीआई म्यूचुअल फंड ने इन पार्टनरशिप विद सीएनबीसी आवाज़। और आज का दिन आइडियाज़ और नई सोच से भरा रहा। हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना और लगातार सीखना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हमारे स्पीकर्स, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के पार्टनर्स और सबसे ज़रूरी आप सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।